Namaskar, hello, and welcome in this new video. In previous video, we have discussed the example based on preparation of profit and loss appropriation account and capital account, that is fluctuate capital method. But in this example, we will discuss preparation of profit and loss appropriation account, capital account, as well as current account. That means this example is based on fixed capital method. As we already discussed, this is a part of preparation of financial statement, that means final account. So without wasting our time, let us start the second example based on fixed capital method. So first I read the example and then we go for the solution of it step by step. Before go ahead, I request all the viewers that watch full example, full video, and write down the example in your notebook. Take the screenshot of it. I will make available this example in the description of video, but apart from that, you should take the screenshot and write down the entire example in your notebook. So whenever you need, you can refer it, right, and repeat it regularly, revision it, then and then it is possible to learn, right? So let us go for the example. That this is the example before you on your screen. Example number 2, Babulal and Hiralal are the partners of a firm. Their profit sharing ratio is 3:2. On 1/4/2024, total capital of the partner was 8,40,000. Here total capital is given. The proportion of their fixed capital is 4:3. So we need to divide this 8,40,000 between two partners in 4:3. This is not the profit sharing ratio, it's a capital ratio. Profit sharing ratio is 3:2. On this day, the balance of their current accounts are as follows. Current account balances are given for Babulal. It is 72,000 because it may be a credit or debit, so it's a credit balance. And Hiralal having debit balance of 48,000, it is given, and it indicates that it is example based on fixed capital method. As per the partnership deed, 12% interest is payable on capital of the partner, and provide 10% interest on opening balance of current account. 12% per annum interest is to be charged on drawing. Salary rupees 4,800 per month is payable to Babulal for his active work in this firm. 10% commission is payable to Hiralal on net profit, but after deduction of his commission. Net profit, but after deduction of his profit. In previous example, the commission is based on net profit, but here the commission is based on after deduction of his commission. So this is the special point. Yeah, we have already discussed, we have already prepared this kind of videos, how to solve this kinds of problem. So it is a part of long example, right? It may be asked in your final account also. Drawing of the partner during the year, Babulal withdrawn 72,000 on 110 and Hiralal withdrawn 96,000 on 1/1/2025. Before consideration of the above mentioned adjustment, the profit and for the year ended on 31st March 2025 of the firm was 8,13,600 is given. From the above information, prepare profit and loss appropriation account and partners capital account and current account. Current account is said, that's why it is a fixed capital system. So let us go for the solution. Solution की तरफ चलते हैं. तो यहाँ मैंने ऑलरेडी आपके लिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट ये ब्लैंक बना के रखें. तो सबसे पहले इस तरीके से ब्लैंक हम बना देंगे. देख सकते हैं आप, बाबूलाल, हीरालाल, ठीक है. ये सारे कॉलम बनाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या रखेंगे, तो सबसे पहले हम रखेंगे
जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है वो, तो प्रॉफिट है 8,13,600। 8,13,600 प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएगा। देख लीजिए ये क्रेडिट साइड आ गया। देन आफ्टर वी गो फॉर दी कैलकुलेशन ऑफ interest on partners capital. Interest on partners capital shown on the debit side of profit and loss appropriation account. तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। कैपिटल ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, और ये अमाउंट किस तरीके से आया है वो ज़रा देख लेते हैं एक बार। तो ये जो आपका कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप 1/4/2024 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आप ये फिक्स कैपिटल बताएंगे। ये कैपिटल किस तरीके से आया है उसके बारे में अगर बात करें तो यू कैन सी ये आपका टोटल कैपिटल 8,40,000 दिया हुआ है, और रेशियो है 4:3। इस रेशियो में इसको बांटना है, तो डिवाइडेड बाई 7 यानी 1,20,000 इंटू 4 यानी 4,80,000 एंड 1,20,000 इंटू 3 यानी 3,60,000। ये चीज़ें आप कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हो, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट काम नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना। इसी कैपिटल के ऊपर 12% इंटरेस्ट, 4,80,000 का 12% और 3,60,000 का 12% रिस्पेक्टिवली आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका टोटल जो है वो बाहर रख देंगे हम। टोटल आ गया 1,08,000। ठीक, इसकी दूसरी एंट्री होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री कैपिटल अकाउंट में नहीं होगी, वो करंट अकाउंट में होगी। लेकिन उससे पहले हम करंट अकाउंट के जो ओपनिंग बैलेंस है वो रख लेंगे। तो बाबूलाल का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड आ गया, और हीरालाल का डेबिट बैलेंस है, तो आप देख सकते हैं ये डेबिट साइड आ गया। तो सबसे पहले हमने इसके करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस रख दी, और उसके बाद ये क्रेडिट साइड में आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट 57,600 एंड 43,200 रिस्पेक्टिवली यहाँ से यहाँ पर आ गया है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गई होगी बात आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है ड्राइंग। तो सबसे पहले ड्राइंग यहाँ पे डाल देंगे। दोनों पार्टनर का ड्राइंग किया हुआ है, ड्राइंग की अलग अलग डेट की है, उसी डेट के अकॉर्डिंग। तो डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, इट इज ऑल्सो नॉट शोन इन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, इट्स अ करंट अकाउंट बिकॉज इट्स अ फिक्स कैपिटल मैथड। तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड आप ये एंट्रीज डाल देंगे, 72,000 और 96,000। इसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं जाती है। एज यू नो एट द एंड ऑफ जो ड्राइंग अकाउंट है वो अलग से बनते हैं, और उसका जो बैलेंस है वो यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफ़र किया जाता है, या फिर जिस दिन आपने ड्राइंग किया उसी दिन भी डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये अमाउंट ड्राइंग है। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करंट अकाउंट में ही बताएंगे, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट चली जाएगी। 12% इंटरेस्ट काउंट करना है। डेट आपको दिया है 1/10/2000, तो 1/10 है तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीने का इंटरेस्ट 72,000 के ऊपर 12% के हिसाब से, और उसी तरीके से 3 महीने का इंटरेस्ट 96,000 पर 12% के हिसाब से ये अमाउंट बनता है। आप कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसकी दूसरी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है, so that will be shown on the credit side of प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ये दोनों एंट्री आपकी आ गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका कंप्लीट हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद अब नेक्स्ट जो टॉपिक था, नेक्स्ट जो पॉइंट था, हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो गया। अब हमें इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी देना है और सैलरी भी देना है। तो सैलरी है हमारा कितना 4,800 रुपीज़ पर मंथ, और ये बाबूलाल को देना है। तो सैलरी एक्सपेंसेस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड हम देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगी सैलरी बाबूलाल 4,800 इंटू 12 57,600, और उसकी दूसरी एंट्री आपकी करंट अकाउंट के अंदर पड़ेगी। तो करंट अकाउंट के अंदर आप देख सकते हैं ये अमाउंट आ गई। उसके बाद आएगा इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट।
तो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ये 48,000 हीरालाल का डेबिट बैलेंस है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो हीरालाल के डेबिट साइड आ जाएगा डेबिट करंट अकाउंट में, तो 10% 4,800। उसी तरीके से बाबूलाल का क्रेडिट बैलेंस है, तो बाबूलाल के क्रेडिट बैलेंस का जो करंट अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट ऑन, ये कमीशन की एंट्री हम बाद में डालेंगे, कमीशन की एंट्री के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हम इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट डाल देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, तो ये जो पार्टनर है 48,000 है, उसका 10% 4,800, और हीरालाल बाबूलाल का 72,000 है, तो 72,000 का 10% यानी 7,200। ये इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट क्रेडिट साइड आ गया। और इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट की दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो जो क्रेडिट है उसको हम डेबिट डालेंगे। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट बाबूलाल का 7,200 क्रेडिट साइड आ गया, और इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हीरालाल का क्रेडिट साइड आ गया। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की एंट्री सारी होगी, लेकिन एक कमीशन की एंट्री बाकी है। अब कमीशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको क्लोज कर देंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, उसी क्रेडिट साइड के टोटल को हम डेबिट साइड रख देंगे, और डिफरेंस जो आता है यहाँ पे, तो डिफरेंस आता है 6,60,000। अब एक पार्टनर को हमें कमीशन देना है हीरालाल को, और कमीशन है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन 10%। तो 6,60,000 यहाँ पे प्रॉफिट निकलता है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और 6,60,000 का 10% नहीं करना है डायरेक्ट, बट 10 डिवाइडेड बाय 110 करेंगे, क्योंकि कमीशन इज बेस्ड ऑन आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज कमीशन। उसका कमीशन माइनस करने के बाद आपको ये कमीशन की अमाउंट देनी है। इसलिए ये जो अमाउंट है वो, ये जो फार्मूला है वो इंटरेस्ट रेट मतलब कमीशन रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस कमीशन रेट, इस तरीके से होगा। और इसका बेसिक कैलकुलेशन हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में सिखा चुके हैं, तो वो प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा। और फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब ये 60,000 की एंट्री, दूसरी एंट्री आपकी यहाँ पे आ जाएगी करंट अकाउंट के अंदर। करंट अकाउंट में डाल देंगे कमीशन, और ये हीरालाल के अंदर कमीशन चला जाएगा। हीरालाल के अंदर कमीशन की अमाउंट हो जाएगी आपकी 60,000। ठीक है, चलिए अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारी एंट्री होगी, लेकिन लास्ट में जब प्रॉफिट निकलेगा तो 6,60,000 पहले आ रहा था, 60,000 का कमीशन डाल दिया। अब आपका प्रॉफिट बचेगा 6 लाख रुपीज़, और ये 6 लाख रुपीज़ प्रॉफिट दोनों पार्टनर के बीच में बांट दिया जाएगा। जो रेशियो हमें दिया हुआ है, जो रेशियो है वो क्या है, रेशियो 3:2, तो 3:2 में हमने इसको बांट दिया। और उसकी दूसरी एंट्री हमने करंट अकाउंट के अंदर लगानी है, तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड दोनों पार्टनर के अंदर उसके हिस्से का जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा। एंड नाउ दिस करंट अकाउंट इज ऑल्सो कंप्लीट, सो यू क्लोज द करंट अकाउंट। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, टोटल क्रेडिट साइड का दोनों में ज़्यादा है, तो आप उसको डेबिट साइड रख देंगे, और फिर हमारा बैलेंस निकल जाएगा। ये सब काम कैलकुलेटर के ऊपर आप करते हैं, कैसे अकाउंट क्लोज करते हैं दैट यू नो वेरी वेल। ये 12th स्टैंडर्ड लेवल पे नई बात नहीं है, 11th स्टैंडर्ड में अच्छी तरीके से सीख के आए। तो ये आपके बैलेंस हो जाएंगे, एंड दिस इज द क्रेडिट बैलेंस, एंड दिस क्रेडिट बैलेंस विल शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। उसी तरीके से कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट को जस्ट क्लोज कर देना है। क्रेडिट साइड का टोटल, वही क्रेडिट साइड का टोटल आप डेबिट साइड रख देंगे, और डेबिट साइड आपका बैलेंस निकल के आ जाएगा। जो आपका ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग बैलेंस है, इसीलिए इसको फिक्स कैपिटल सिस्टम बोला जाता है। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट हो गया, ये आपका करंट अकाउंट हो गया, और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। होप यू अंडरस्टैंड वेल। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। रिक्वेस्ट सबसे यही है, पूरा वीडियो देखें, अपनी नोटबुक में इसको राइट डाउन करें, ठीक है। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए एग्जाम्पल के साथ, तब तक बने रहिए चैनल
देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।